A very good evening to all of you. Thank you so much for joining. Welcome back to our reading session of Nirvana by George Sari. So, as always, we are starting with a short meditation. Sit back comfortably. Shoulders rest. Remove any stiffness or tightness from your body. Stretch a bit in both sides. Then put your hands on your lap. Let your shoulders and your neck loose. Just as you are relaxing, loosen your grip upon the things in your head. Surrender all the worries, all the tension regarding what will happen in the future. Take a deep breath in. This time, feel the freshness in the air as you have left the body. Now you can breathe in freely, move freely, because you are no longer burdened by the results. So, I am doing my best. I am putting in my best efforts. Practicing accuracy, not just as excellence in everything, but accuracy in putting my efforts. My full attention to my tasks. Even a small conversation is meaningful. I stay in the present moment and I enjoy the work I do. Everything is perfect, cool, and centered, and I'm a part of the Supreme Soul. I said the best way and the divine place in perfect place. All is well in my life. Shanti. Thank you. Let me share my screen now. So today we are going to start a new chapter, that is chapter 4.
Living the Vedantic Dream. Previous chapter, we talked about Tattvamasi, Advaita Vedanta, and Kasturi Mrit. The takeaway from that chapter was we, the individual souls or Atman, and the Supreme Soul, the Brahman, are not different, they are the same. And this all wisdom came from the Upanishad. We are going to start living the Vedantic dream. How can we live like this? See, the dreamscape shifts to a vast library of life with books floating in the air and glowing with an inner radiance. Ishan and God sit at a table made of shimmering energy, deep in conversation. तो अब जो हमारा बैकग्राउंड था लास्ट चैप्टर में फॉरेस्ट का बैकग्राउंड था, अभी हम इमेजिन करेंगे कि ईशान और गॉड दोनों एक वास्ट लाइब्रेरी में बैठे हैं, बहुत बड़ी लाइब्रेरी, उसमें लाइट है, बुक्स फ्लोट कर रही है एयर में और उनके एक अलग ही ग्लो है। और ईशान और गॉड एक टेबल पर बैठे हैं। टेबल कैसे है? मेड अप ऑफ शिमरिंग एनर्जी और दोनों डीप इन कॉन्वर्सेशन। them can be two-way in conversation. God, with a gentle smile, Ishan, have you heard of Swami Vivekananda? He was one of the brightest spiritual lights of modernism. तो God पूछ रहे हैं ईशान से कि क्या तुमने स्वामी विवेकानंद के बारे में सुना है? वो एक बहुत ही चमकता हुआ सितारा रहे हैं, स्पिरिचुअल लाइट्स, एक आध्यात्मिक लाइट ऑफ मॉडर्न इंडिया। मतलब मॉडर्न इंडिया मतलब हमारा रिसेंट पीरियड, जो आप लोगों ने ब्रिटिशर्स वाले टाइम पे पढ़ना होगा, वो मॉडर्न इंडिया था। जैसे अगर हम इंडिया की हिस्ट्री को डिवाइड करेंगे तो एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, इन तीन चीजों में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो एंशियंट वाला जो एकदम बहुत पुराना रहा है भारत का इतिहास, उसके बाद मिडिवल में मुगल इन्वेशन, टर्क्स, ये सब आ गए, और मॉडर्न इंडिया यानी कि कॉलोनियल पीरियड जब से स्टार्ट हुआ था उस टाइम से लेकर। Ishan, excitedly, oh yes, God, I have read about him. He was an amazing speaker and represented Hinduism at the World's Parliament of Religions in Chicago. His speech began with Sisters and Brothers of America, and it is said that the audience gave him a standing ovation. तो जब गॉड ने ईशान से पूछा कि क्या तुमने स्वामी विवेकानंद के बारे में सुना है, तो ईशान कहता है कि हाँ, मैंने उनके बारे में पढ़ा है। वो एक अमेजिंग स्पीकर थे, एक बहुत ही अच्छे वक्ता थे, और उन्होंने हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट किया था, उसका प्रतिनिधित्व किया था। कहाँ पर? वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस, जो सारे धर्मों का होता है ना, रिलीजन का, उसका वर्ल्ड पार्लियामेंट है शिकागो में। वहां पे उन्होंने हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट किया था। और उनकी स्पीच कैसे स्टार्ट हुई थी? सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, उन्होंने अमेरिकन जो ऑडियंस थी, उन्होंने उनको सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कह करके संबोधित किया था। और जो ऑडियंस थी उसने स्पीच के बाद में उन्हें एक स्टैंडिंग ओवेशन दिया था। God nods warmly. In Ishan, that speech was not just about words, it carried the power of truth and the essence of universal love. He reminded the world of the unity of all faiths and the divinity within every soul. तो गॉड कह रहे हैं ईशान को कि वो जो स्पीच थी वो सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स नहीं थे, उसमें खाली शब्द नहीं थे, उनके जो वर्ड्स थे उनमें पावर थी। पावर किसकी? सच्चाई की ताकत थी। और यूनिवर्सल लव का एसेंस, यूनिवर्सल मतलब सबके प्रति जो हम संभाव, अच्छी शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं, सबके प्रति प्रेम वाला भाव रखते हैं, तो वो उनके वर्ड्स में कैरी किया हुआ था। और उन्होंने हमें इस पूरे वर्ल्ड को ये
याद दिलाया कि जो यूनिटी होती है, यूनिटी ऑफ ऑल फेथ्स, सारे जितने भी धर्म जाति है, उन सबकी जो यूनिटी है, एकता है, और जो डिविनिटी है, वो हर एक सोल, हर एक आत्मा के अंदर होती है। ईशान क्यूरियस, आई नो ही वाज अ डिसाइपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस एंड टॉक्ड अबाउट वेदांत। ईशान कह रहा है, मुझे ये पता है कि वो रामकृष्ण परमहंस के डिसाइपल, शिष्य थे, और उन्होंने वेदांत के बारे में भी बातें की थी। रामकृष्ण परमहंस, अगर आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे कि रामकृष्ण परमहंस काली माँ के भक्त हैं। तो काली माँ एक हिंदू गॉडेस है, और उनके भक्त हैं रामकृष्ण परमहंस, और रामकृष्ण परमहंस के शिष्य हैं स्वामी विवेकानंद। God, with an energetic nod, Swami Vivekananda was a beacon of Advaita Vedanta. While the philosophy itself is ancient, Vivekananda brought it to the masses in a practical, relatable way. He called it practical Vedanta. तो गॉड कह रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद अद्वैत वेदांत के एक विवेकन थे, और ये जो फिलॉसफी है अद्वैत वेदांत की, ये बहुत एंशियंट है, प्राचीन है, लेकिन विवेकानंद ने इस प्राचीन जो फिलॉसफी है अद्वैत वेदांत की, इसको मासेस तक पहुंचाया था, बहुत लोगों तक पहुंचाया था, और वो भी एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक रिलेटेबल तरीके से पहुंचाया था, और उन्होंने इसको प्रैक्टिकल वेदांत कहा था। ईशान क्यूरियस, प्रैक्टिकल वेदांत, व्हाट डज दैट मीन? तो ईशान कुछ चाहिए क्या? God, with a gentle smile, it means applying the principles of Advaita Vedanta to daily life. Vivekananda taught that we are not just physical beings bound by limitations, we are divine. Each one of us carries the essence of the Supreme Consciousness, Brahman. By realizing this, we can live with confidence, strength, and purpose. तो गॉड कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल वेदांत का मतलब है कि अद्वैत वेदांत के जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना। जो हम पढ़ते हैं उसे सिर्फ पढ़ने तक सीमित नहीं रखना, उसे जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक हम नहीं समझ पाएंगे, तब फिजिक्स करने का भी कोई अधिकार नहीं है। हमें अपनी डेली लाइफ में उतारनी चाहिए, और विवेकानंद ने हमें यही सिखाया था कि जो फिजिकल बींग्स है, हम सब जो ह्यूमन बींग्स है, फिजिकल बॉडी के साथ में जो है, ये जो फिजिकल बींग्स है, वो हम लिमिटेशंस के साथ नहीं है, हम डिवाइन है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ इस शरीर तक सीमित नहीं है, बहुत डिवाइन है, और हम सबके अंदर में सुप्रीम कॉन्शियसनेस का एक एसेंस है। सुप्रीम जो कॉन्शियसनेस है उसका एक एसेंस हम सबके अंदर में है, क्योंकि हम सब उस ब्रह्मन के ही पार्ट है ना। बाय रियलाइजिंग दिस, और ये समझने के साथ साथ में हम कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ और एक पर्पस, एक उद्देश्य के साथ में अपना जीवन जी सकते हैं। God, gently, Vivekananda believed that divinity is not something outside us, that but something within us, waiting to be realized. One of his teachings was, the living God is within you. तो गॉड ने जेंटली बताया कि जो विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद, उन्होंने वो ये मानते थे कि जो डिविनिटी है वो कहीं बाहर नहीं है, पर वो हमारे ही अंदर में है, जो कि वेट कर रही है कि हम कब उसे रियलाइज करेंगे, कब हम उसे पहचानेंगे। और उनकी एक टीचिंग थी कि द लिविंग गॉड इज विद इन, जो गॉड है वो हमारे ही अंदर है। और उन्होंने एम्फसाइज किया था कि अगर हमें गॉड को देखना है तो हमें सबसे पहले जो हमारे अंदर की जो डिविनिटी है और दूसरों के अंदर की जो डिविनिटी है उसे पहले देखना है, तभी हमें गॉड दिखाई देगा। यहाँ पे लिखा था कि गॉड ने बोला कि
प्रैक्टिकल वेदांत का मतलब होता है कि अद्वैत वेदांत के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको डेली लाइफ में हमें अप्लाई करना चाहिए। तो चैप्टर 3 में हमने 3 की प्रिंसिपल्स ऑफ अद्वैत वेदांत पढ़ा था। और ये 3 की प्रिंसिपल्स क्या क्या है? ब्रह्मन सत्यम, जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव निपारा। तो अगर किसी ने भी मिस कर दिया हो वो पहला सेशन तो वो जाकर के रिविजिट कर सकते हैं। और अब हम इस चैप्टर में उन उसकी प्रिंसिपल को उन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकल अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज करेंगे वो सीखने जा रहे हैं। तो जब गॉड ये सारी चीजें समझाते हैं ईशान को तो ईशान कहता है that the Atman is not separate from the eternal Brahman। ये जो आत्मा है हमारी सबके इंडिविजुअल सोल, वो सुप्रीम ब्रह्मन जो इटर्नल है उनसे अलग नहीं है। गॉड एग्जैक्टली विवेकानंद brilliance lay in simplified profound truths। He also encouraged people to believe in themselves, saying he who has no faith in himself can never have faith in God। तो गॉड समझा रहे हैं कि विवेकानंद की जो ब्रिलियंस थी वो जो प्रोफाउंड ट्रुथ्स होते हैं, ये जो सत्य होते हैं, हम इतने बड़े बड़े सत्य एकदम बड़े बड़े वर्ड्स में पढ़ते हैं, इन सबको विवेकानंद सिंप्लीफाई कर देते हैं, बहुत साधारण इंसान भी उसको समझ सके, अपने जीवन में उतार सके। तो ये उनकी एक खासियत थी। और वो लोगों को इनकरेज करते थे कि सब अपने अपने ऊपर बिलीव, अपने अंदर बिलीव करें, विश्वास रखें खुद पर। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो खुद के ऊपर विश्वास नहीं रखते उन्हें कभी भी भगवान के ऊपर विश्वास नहीं हो सकता। गॉड स्माइलिंग ही सेड, manifest the divinity within you and everything will be harmoniously arranged around you। उन्होंने ये भी बोला था कि जब हम अपने अंदर की डिविनिटी जो है उसको मैनिफेस्ट करेंगे, मतलब उसको जब हम रियलाइज करेंगे तब हमारे आसपास सारी चीजें बहुत हार्मोनियस वे में अरेंज हो जाएंगी। When you align with your true nature, you tap into immense inner strength and wisdom। This is what he meant by practical Vedanta, living with the awareness of your divine potential and acting with compassion and confidence। तो जब हम अपनी ट्रू नेचर, हमारी ट्रू नेचर क्या है? जो डिवाइन, उसके साथ में जब हम अलाइन करते हैं, उसके साथ हम अलाइन कैसे करेंगे अपनी ट्रू नेचर के साथ में? जो भी हम अपनी ट्रू नेचर के बारे में समझते हैं अभी कि वो डिवाइन है, वो ट्रुथ है, वो ब्रह्मन से अलग नहीं है, हमारी आत्मा बहुत पवित्र है और बहुत ही पावरफुल है। ये सब जब हम अपने ट्रू नेचर के बारे में समझ चुके हैं और उस हिसाब से हम जब जीना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी लाइफ में उन प्रिंसिपल्स को उतारते हैं, तो हम अपने ट्रू नेचर से अलाइन कर देते हैं खुद को। और तब हमें अपने अंदर इमेंस इनर स्ट्रेंथ और विजडम फील होती है, एकदम ज्ञान का प्रकाश, बहुत सारी ताकत फील होती है। और इसी को प्रैक्टिकल वेदांत हम कह सकते हैं कि जब हम अपनी अवेयरनेस के साथ जुड़ते हैं, हमारी डिवाइन पोटेंशियल जो है उससे हम अवेयर होंगे कि हाँ ये हमारी पोटेंशियल है, और उसके साथ जब हम जिएंगे, हम एक्ट करेंगे इस दुनिया में किस तरह से बर्ताव करेंगे, विद कंपैशन, करुणा और कॉन्फिडेंस, ये लेकर के तब उसे हम प्रैक्टिकल वेदांत करेंगे। शांत writings that's so inspiring, but wasn't Vivekananda also trying to bring people together? God, with a radiant expression, very much so, at the parliament of relations, he spoke of the unity of all beings. He said that truth is one, though people may call it by different names. He reminded everyone that we are all connected, part of the same divine whole। तो ईशान कहता है कि ये तो बहुत इंस्पायरिंग है, और विवेकानंद तो लोगों को भी एक साथ करने की कोशिश कर रहे थे ना। तो गॉड समझाते हैं कि जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस था जहाँ पे उन्होंने स्पीच दी थी, तो उधर पे उन्होंने हर एक धर्म, हर एक जाति की जो एकता है उसकी बात की थी। उन्होंने कहा था कि सत्य एक ही है, भले ही जो लोग हैं उसे अलग अलग नाम से पुकारें, लेकिन सच तो एक ही है। और
उन्होंने लोगों को ये याद भी दिलाया था कि हम सब भी कनेक्टेड हैं, हम सारे लिविंग बींग्स कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, और हम सब उस डिवाइन होल के ही पार्ट। ये हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा था ना, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग, सब के सब हम कनेक्टेड हैं। हम सबके अंदर में एक लिविंग आइडेंटिटी जो है, हमारी सोल है, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, और वो सब उस सुप्रीम सोल से भी डिसेंड होकर आए हैं, निशानी कर दी थी। He even founded Vedanta Society in favor of America, right? God. Yes, Ishan, from 1893 to 1900, his speeches inspired the creation of these societies, spreading the timeless wisdom of Vedanta far and wide. His mission was not just to teach, but to awaken people to their shared divinity, regardless of culture or creed. Ishan, smiling. It's amazing how he made such deep ideas sound so simple. He really wanted people to believe in themselves. ईशान कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने तो वेदांत सोसाइटीज में थी ना यूरोप और अमेरिका में, तो बहुत कह रहे हैं कि उनकी जो स्पीचेस थी 1893 से लेकर 1900 तक, उसने बहुत इंस्पायर किया था कि ये सारी सोसाइटीज की क्रिएशन हो सके। और उन्होंने इन सोसाइटीज के थ्रू जो वेदांत के टाइमलेस विजडम है उसको बहुत स्प्रेड करने में हेल्प किया था। बहुत दूर दूर तक स्प्रेड हुई थी वेदांत की नॉलेज, और उनका जो मिशन था वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को टीच करना ही नहीं था, पर उन्हें अवेकन करना भी था। मतलब एक तो आप लोगों को समझा सकते हैं, उन्हें सिखा सकते हैं, और दूसरा क्या है कि उन्हें अंदर से जगा सकते हैं। जब वो ये सारी चीजें समझ करके अंदर से उसे रियलाइज करके उसके अकॉर्डिंग एक्ट करे, उस अकॉर्डिंग वो जीने लगे, तो उसे हम अवेकन कहेंगे। तो वो अवेकन भी करते थे लोगों को, ये जो शेयर्ड डिविनिटी है, रिगार्डलेस ऑफ कल्चर और creed, भले उनकी क्या भी जाति हो, कोई भी कास्ट हो, लेकिन वो सबके साथ में ये विजडम को शेयर करते थे और उन्हें अवेकन करते थे। ईशान स्माइलिंग। ईशान ने स्माइल करते हुए कहा, ये तो बहुत अमेजिंग है कि उन्होंने इतनी डीप आइडियाज इतने सिंपल तरीके से समझाए थे। वो सच में लोगों को चाहते थे कि वो अपने ऊपर में विश्वास कर सके। God, clearing throat pointedly. That's why his teachings endured, Ishan. Vivekananda believed that awakening our divine potential wasn't just a spiritual pursuit, it was the key to transforming the world. The techniques we will explore today are one part of practical Vedantas. तो गॉड कह रहे हैं कि उनकी जो टीचिंग्स वो इतने टाइम तक इसीलिए वो रहे कि उन्होंने इतने सिंपल तरीके से एक तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए, दूसरा वो लोगों को सच में चाहते थे कि वो अपने ऊपर बिलीव करे, अपने डिवाइन पोटेंशियल पर बिलीव करे, उसे रियलाइज करे, अवेकन करे खुद को। और वो सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल परसुएट से नहीं समझाते थे, वो इसीलिए भी समझाते थे कि इस पूरे वर्ल्ड को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। पर आप लोग सोचिए कि अगर सब लोग इस तरह से अच्छे से जीने लगे तो क्या होगा, जो पूरे के पूरे जो वर्ल्ड है वो पूरे ट्रांसफॉर्म हो जाए, और बहुत ही अच्छा एक युग आ जाएगा, जो कि इस बुक के स्टार्टिंग में भी है कि हमें कलयुग को एंड करके एक गोल्डन एज, एक सतयुग लेकर आना है। और ये जो टेक्निक्स है ये हम एक्सप्लोर करेंगे आज प्रैक्टिकल वेदांत नाम से। Ishan determined, I want to learn more about him and how to practice various techniques in practical Vedanta. तो ईशान कह रहे हैं कि अ, मुझे और भी ज्यादा सीखना है, उनके बारे में देखना है, समझना है, जानना है, और किस तरह से हम प्रैक्टिकल वेदांत की जो टेक्निक्स है उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। If everyone realized their divinity, the world would be so much better. तो ईशान कह रहा है कि अगर सब लोग अपनी अपनी डिविनिटी को रियलाइज कर लेंगे तो ये जो दुनिया है ये बहुत अच्छी हो जाएगी। God, smiling form. That's the spirit, Ishan. Keep exploring. And remember, just as Vivekananda said, the living God is within you. When you act with faith, courage, and love, you manifest that divine truth in the world.
तो गॉड कह रहे हैं कि एक्सप्लोर करते रहिए, और ये याद रखना है हमें, जो विवेकानंद ने कहा था कि जो लिविंग गॉड है वो हमारे ही अंदर में। तो जब हम इस अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे, विश्वास के साथ में, हिम्मत के साथ और प्रेम के साथ, तो फिर हम डिवाइन ट्रुथ को मैनिफेस्ट करेंगे इस वर्ल्ड में। एक डिवाइन ट्रुथ को हम वापस ला पाएंगे। ईशान says gleam with newfound inspiration, young heart carrying the timeless message of self-belief, unity and divine potential। तो ईशान को एक बहुत न्यू फाउंड इंस्पिरेशन मिल गई है, उसकी आईज इसीलिए एकदम ब्राइट हो गई है, और उसका जो यंग हर्ट है वो एक टाइमलेस मैसेजेस को कैरी कर रहा है, जो कि सेल्फ बिलीफ, खुद पे विश्वास, यूनिटी, एकता और डिवाइन पोटेंशियल, हमारी जो पोटेंशियल है, ताकत है, उस पर विश्वास कर रहा है। द फिजिक्स ऑफ अनसर्टेनिटी, यह चैप्टर 5। See, the dreamscape shifts again. Ishan and God now sit amidst a shimmering, star-filled void with vibrant particles zipping through the air like tiny fireflies. The city feels alive while pulsing with the mysteries of the quantum world. तो अब ड्रीम्सकेप वापस से चेंज होता है। ईशान और गॉड ये दोनों अब बैठते हैं एक शिमरिंग स्टार फिल्ड वॉइड में, जहाँ पे बहुत ही वाइब्रेंट पार्टिकल्स हैं जो कि एयर में घूम रहे हैं, इस तरह से जैसे टाइनी फायर फ्लाइज, छोटे छोटे जुगनुओं की तरह ये सब पार्टिकल्स घूम रहे हैं। और ये जो सेटिंग है ये बहुत अलाइव फील हो रही है, जिसमें कि क्वांटम वर्ल्ड के मिस्ट्रीज हैं। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा फिजिकल और थोड़ा क्वांटम वर्ल्ड के बारे में जानेंगे। तो फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है, जो कि पार्टिकल्स को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ से कुछ थ्रो करेंगे तो ग्रेविटी और जो उसकी स्पीड है, जिस तरह से हम उसे थ्रो करें, इसमें हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी हम थ्रो कर रहे हैं वो कहाँ जाता है। पर क्वांटम वर्ल्ड क्या होता है, वो एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम अपनी आईज से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो वो वाले जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो हम इतनी ज्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और इस चैप्टर में क्वांटम वर्ल्ड के थ्रू बहुत सारे डिवाइन ट्रुथ्स को अनकवर करेंगे। ईशान, looking around in awe, this place feels different. Everything is connected but also unpredictable. Is this the quantum world? तो ईशान कह रहा है कि ये जो जगह है ये बहुत अलग लग रही है। हर कुछ ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्टेड है, लेकिन ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल भी है कि आगे क्या हो। क्या ये क्वांटम वर्ल्ड है? तो गॉड स्माइल करते करते आंसर देते हैं, इंडेड इट इज द क्वांटम वर्ल्ड, a realm of subatomic particles like electrons and protons that follow an entirely different set of rules than those of classical physics। तो गॉड कह रहे हैं कि ये क्वांटम वर्ल्ड ही है। क्वांटम वर्ल्ड जहाँ पे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। अच्छा, एटम के बारे में हम लोग जानते हैं। एटम होता है बहुत ही छोटा एक पार्टिकल। एटम के अंदर में भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो एकदम क्लोजली उसके सेंटर में रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड घूमता है। जैसे कि अगर हम सोलर सिस्टम से कंपेयर करेंगे ना, तो सन है और सन के अराउंड प्लैनेट्स घूम रहे हैं। वैसे एटम का जो सेंटर होता है उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। तो ये बहुत ही डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं क्लासिकल फिजिक्स से। ईशान, with a thoughtful pause, I know about the double slit experiment. If you don't observe the electrons, they create an interference pattern like waves. But if you measure which slit they go through, the pattern disappears and behave like particles. It's almost as if observation changes reality। तो ईशान कह रहा है कि उसने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व नहीं करें
अभी मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो सेंटर होते हैं उसके अराउंड घूमते रहते हैं प्लैनेट्स के तुलना। तो अगर हम उन इलेक्ट्रॉन्स को जो घूम रहे हैं उन्हें ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो कोई इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट कर लेंगे जो कि वेव्स की तरह लगेंगे। पर अगर हम मेजर करेंगे कि वो किस स्लिट से जा रहे हैं तो ये जो पैटर्न होगा वो डिसअपियर हो जाएगा। पैटर्न डिसअपियर हो जाएगा और वो लोग पार्टिकल्स की तरह बिहेव करेंगे। और ये ऐसा ही है जैसे कि अगर हम ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं तो रियलिटी चेंज हो जाती है। जो हमारी सच्चाई है वो चेंज हो जाती है। गॉड लीनिंग फॉरवर्ड, योर अंडरस्टैंडिंग इज करेक्ट ईशान, एंड नाउ यू आर अवेयर ऑफ द रियलिटी विदिन द ऑब्जर्वर दैट cause these strange outcomes in the double slit experiment. First, let us understand the basics. Quantum physics is the science of subatomic particles like electrons, protons, and neutrons that make up the atom. Unlike the everyday world we experience where objects are solid, finite, and measurable with precision, the quantum world follows a very different set of rules. At that scale, things behave in ways that appear strange or even spooky. For example, particles such as electrons don't exist as fixed objects when left unobserved. Instead, they exist as probability waves or energy pools spread out across space. Only when they are measured or interacted with do they suddenly collapse into a definite position and acquire measurable properties like mass. Once the interaction ends, they return to their uncertain probabilistic state. This bizarre behavior, so different from classical physics, has puzzled even the greatest scientific minds. Some physicists have even drawn philosophical parallels, suggesting that the quantum world hints at a deeper, interconnected reality beyond what our senses can directly perceive. तो यहाँ पे गॉड ने सिंप्लीफाई करके ईशान को यही चीजें समझाई है कि क्वांटम फिजिक्स की बेसिक में क्या होता है कि हम सब एटॉमिक पार्टिकल से डील करते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और यही तीन मिलकर के एक एटम को बनाते हैं। तो अगर हम अपनी हर एक रोजमर्रा के दिन को भी ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे सॉलिड होते हैं, फाइनाइट और मेजरेबल होते हैं। ये चीजें हम पाते हैं और क्वांटम वर्ल्ड में एक बहुत ही अलग सेट ऑफ रूल्स होता है। वहां पे जो चीजें होती हैं वो बहुत स्ट्रेंजली और स्पूकी उनका बिहेवियर होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया था प्रोबेबिलिटी वेव्स और ये सब का। अगर हम इसे सिंप्लीफाइड तरीके से समझेंगे तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये पॉइंट उसे हम बस स्पिन कर देंगे तो वो घूम रहा है तो प्रोबेबिलिटी होगी हेड्स और टेन्स आने की बराबर प्रोबेबिलिटी है वो घूम रहा है। लेकिन जैसे ही हम उस कॉइन के साथ इंटरैक्ट करते हैं मतलब अपना हाथ उसके ऊपर रख देते हैं उसके बाद हम अपना हाथ हटा के देखते हैं कि वो हेड है कि टेल है। तो इंटरैक्शन होने से जो उसकी प्रोबेबिलिटी वेव्स वो डिसअपियर हो गई, वो अचानक से कोलैप्स कर गई। और जैसे ही वो इंटरेक्शन हमारी खत्म हो गई तो फिर से वो जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ही अनसर्टेन और प्रोबेबिलिस्टिक स्टेट में वापस चले जाएंगे। तो ये जो बिजेयर बिहेवियर है कि जब हम उसे ऑब्जर्व नहीं करते तब वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल लगता है, जैसे ही उसे ऑब्जर्व करते हैं रियलिटी फिर कोलैप्स कर जाती है। तो ये बहुत ही डिफरेंट है क्लासिकल फिजिक्स के साथ में जिसमें कि ग्रेटेस्ट साइंटिफिक माइंड्स को भी पजल करके रखा है। तो कुछ फिजिसिस्ट हैं उन्होंने फिलोसॉफिकल पैरेलल फिर बना लिए क्वांटम फिजिक्स को लेकर और ये सजेस्ट किया कि जो क्वांटम वर्ल्ड है वो हिंट करता है एक बहुत ही डीपर इंटरकनेक्टेड रियलिटी जो कि हमारे सेंसेस से हम उसे अपने सेंसेस से डायरेक्टली परसीव करने में पूरी तरह से समर्थ भी नहीं है। God with a serene expression. But what modern science does not yet fully understand is that this strange quantum behavior may hint at something profound. If the really building blocks of matter can exist in states of pure probability until they are observed, then reality itself is not as rigid as it appears.
In this view, even the most finite things in the universe may be influenced by consciousness, intention, or awareness. This opens the door to the idea that we are not merely passive observers of reality but active participants in shaping it. The flow of events then may not be random but can be guided in ways that align with deeper, timeless principles, the very eternal rules we are discussing today. ये जो मॉडर्न साइंस होती है वो पूरी तरह से इस स्ट्रेंज क्वांटम बिहेवियर को समझ नहीं सकती है। और ये जो क्वांटम बिहेवियर है कुछ बहुत ही प्रोफाउंड की तरफ हमें हिंट दे रहा है। ये बिल्डिंग ब्लॉक की तरह है, मैटर की बिल्डिंग ब्लॉक की तरह है जो कि एग्जिस्ट करती है इन स्टेट्स ऑफ प्योर प्रोबेबिलिटी until they are observed। तब तक प्योर प्रोबेबिलिटी रहती है, कुछ निर्णय नहीं रहते हैं हमारे पास, सिर्फ ये प्रोबेबिलिटी होती है कि ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है। तो इस तरह से प्योर प्रोबेबिलिटी रहती है जब तक कि हम उसे ऑब्जर्व नहीं करते, और उसके बाद क्या होता है, रियलिटी itself is not as rigid as it appears। तो ये जो रियलिटी हमें इतनी रिजिड दिखाई देती है प्रिडिक्टेबल, इतनी रिजिड होती नहीं है। और इस व्यू से जो बहुत ही फाइनाइट चीजें होती है यूनिवर्स में, वो कॉन्शियसनेस से, इंटेंशन से और अवेयरनेस से इन्फ्लुएंस की जाती है। और ये एक डोर ओपन करने के जैसा आइडिया है that we are not merely passive observers of reality but active participants in shaping it। तो जो रियलिटी चल रही है हम उसके पैसिव ऑब्जर्वर नहीं है। पैसिव ऑब्जर्वर क्या हो गया, जो होता है उसके बारे में देखें तो हम सिर्फ वही नहीं है, हम एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं इन शेपिंग इट। मतलब हम अपनी रियलिटी को खुद से बना सकते हैं। The flow of events then may not be random but can be guided in ways that align with deeper timeless principles, the very eternal rules we are discussing today। तो ये जो इवेंट्स का फ्लो है ये रैंडमली नहीं होता कुछ भी, ये सब गाइडेड होते हैं और वो बहुत ही डीपर टाइमलेस प्रिंसिपल्स के साथ अलाइंड होते हैं। वो अपने टाइम पे सब कुछ होता है, जो इटर्नल रूल्स है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। So we are keeping our session here. Tomorrow we will start from PDF page number 26. Thank you so much for joining everyone. Have a nice day.